Hi guys, welcome back to the channel. Today we have a very special guest with us, and a lot of you guys already know him. And he had experience of more than 11 years in teaching FMG students and 17 to 18 years teaching NEET PG students. So the person I'm talking about is Dr. Rajiv Dhawan sir. He is an ENT faculty in Doc Tutorials, and so today he's with us to answer all the questions regarding FMG preparation. And if you guys don't know me, hi, I am Keshav from Dr. Behind the Scenes. I cleared my January 2023 exam with a score of 206. So yeah, let's begin. Thank you so much, sir, for joining this session. It's really an honor to have you here. And yeah, I'm like very excited. So thank you so much for joining and for giving your time. Thank you very much, Keshav, for organizing this session also. It's wonderful to have you and the audience over here. Okay, so I think, sir, this session will be very useful for the students who are preparing for June attempt because they are very still they are very confused because dates release नहीं हुई है, even application की dates release नहीं हुई है and exam date तो दूर की बात है. So they are very confused. So this session would be very helpful for those. And second, who are preparing for December और जो भी पढ़ रहे हैं, they can just take an idea कि कैसे पढ़ना है and how to approach the thing. And they can just make their own schedule. But let's start with the first thing. So since this year, 2023, would be the last year for FMG. And June तो it's confirmed, and December तो किसी को नहीं पता कि होगा नहीं होगा. But from next year, there is a high chance कि next will come. So, what do you think? What should be the mindset of a student who is giving June FMG? Like they are very stressed कि अगर उन्होंने इस बार में नहीं निकाला, मतलब इस बार नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तो नेक्स्ट आ जाएगा और उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना. एक वो माइंडसेट है. एंड सेकंड, वो बच्चे जो स्टिल दे आर इन कॉलेज ईयर्स लाइक इन फोर्थ और सिक्स्थ ईयर एंड दे हैव टू गिव नेक्स्ट, दैट्स फॉर श्योर. बट व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ दैट दो स्टूडेंट्स? Sure. Keshav, wonderful question, first of all. My dear FMG friends who are preparing for this June examination, let me tell you, you are lucky people. You know what? This is one of the last few FMG examination. Let us make sure that we do our level best to pass the exam. होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेरे हाथ में हार्ड वर्क है. मैं अपना 200% हार्ड वर्क करने जा रहा हूँ ताकि मेरे पास होने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट रहे, सो दैट आई हैव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग. May God bless your hard work. I will suggest each one of you, please don't let this opportunity go out of your hands. But this is really wonderful. Still one of the last few FMGs. Why to let it go? 150 out of 300 without negative marking is definitely a doable, achievable target. I know some of you who are hearing me, they will be saying, Rajiv, we could not do last time. I say, let's do this time. Don't predict your failure. Even if you don't want to think positive, at least don't think negative. My humble request to all of you, at least don't think negative. Just whenever fear bothers you, कि अगर नहीं हुआ, ये लास्ट एफएमजी है, मान लो नहीं हुआ, डर लगता है. और ये कहने की बात है, डर नहीं लगता. डर सबको लगता है भाई, लेकिन डर के आगे जीत भी होती है. तो व्हाई नॉट रियली हैव दैट माइंडसेट दैट जो होगा देखते हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट खेल खेलने जा रहा हूं. उसी थॉट से प्लीज इन्वेस्ट एवरी डे. माय humble request to all of you appearing in June paper, right from this moment onwards, pledge that whichever date the exam may be, I am going to invest every day wholeheartedly. And lastly, Keshav, I would in this for this question, I would say, if I would have been an FMG where there's no clarity of the date, I would have created hypothetical date of 4th June as my examination, because brain loves to follow milestones. When there are no milestones, brain will make you feel confused, distracted, and then disheartened. So my dear friends, let us really, Keshan has created a wonderful opportunity over here for us to really interact, and let us create a hypothetical date from this moment onward. 4th June is my examination. By chance, it is 17th June or 18th June. No worries, we get 2 weeks extra for an extra revision that would further enhance our chances. But for us, 4th June is the hypothetical date of the examination. Keshav, your set कर देते हैं आज से डेट 4 जून हाइपोथेटिकल वो. Hypothetical date.
गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, बाद में देखते हैं। लेकिन हम भाई 4 जून के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने कोई कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं कि 2 अगस्त में हो जाएगा, कभी कभी कुछ नहीं सोचना है। जो भी होगा, केशव इज वेरी रेगुलर ऑन दिस, आई नो दिस, वी ऑल विल बी इन्फॉर्मिंग यू। बाय चांस कोई भी डेट में आगे पीछे होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग टुगेदर, बिकॉज व्हाट इज द ड्रीम, may every FMG pass the examination, and this is the exam in your hands, my dear friends. Yes, sir. And sir, for those students who are still in their college years, what should be the mindset for those students? Like they are very please continue. Yeah. See, Keshav, if you are a third year in your foreign university or a fourth year and you are not coming back in July, I'm talking about those people. Please follow NEET PG version of the videos. In case you're following any application or any resource, switch off the FMG version, upgrade to NEET PG version. Because like I have my ENT app, I know people say FMG content is sufficient for NEET PG. It is not at all that, honestly. Right now, I'm sitting in the studio. Believe me, for all those FMG students, my dear younger brothers and sisters, if you're hearing me, if you're a third year, fourth year, and you're not coming to India, finishing your course in July 2023, you're coming in January 2024 or later than that, all of you, please switch over the content from the FMG versions to NEET PG versions. Let us escalate to that level. And this is my proud privilege to have worked with FMGs for last 11 years. I'm working with FMGs for last 11 years and NEET PG for last 17, 18 years actually. Let me tell you, FMGs are much more than what they think about themselves. Sometimes FMGs think, no, I cannot really handle this because I am not taught in my university. Let me tell you a secret of the IMGs today. We are also not taught anything. Don't worry. Majority of the medical college in India, because it is my 18th year of this medical education thing, and I've been to pretty higher number of medical colleges in India all across, and of course outside country also, to your colleges. सिचुएशन सेम है यार, बता रहा हूँ। ये ब्रेन ना पता क्या होता है, सीनियर्स को कॉपी करता है। हाँ। सीनियर बोलते भाई बहुत टफ पेपर है, इसके बियॉन्ड तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ। हो पाएगा, याद रखना ये बात। हैव फेथ। FMGs are very, very much sharp people. They are very street smart people. They are very brainy people. Only thing is they have to know their own worth. They have to know their own potential. And my dear younger brothers, sisters, let us now finish this difference of IMG, FMG, this thing. The next coming is an opportunity for us to bring democratization of the medical education in the country also. I am not really very happy when somebody says, oh, you are FMG? Oh, you are this FMG means somebody chose a different route of medical education, which is his democratic right. So it's okay. But when you clear the same exam, IMG, FMG, both clear next exam, nobody will ask you, are you FMG or IMG? Because both clear the same exam. But for that, the content has to be as per the next paper. As of now, let us escalate our knowledge to the NEET PG level. People who are coming in July, stick to the current pattern of studying, revising what you are doing, resources to be same. Don't change that. As situation will evolve in the month of May, definitely me and Keshav, or we will come together again or on our platforms, we'll inform you what government is deciding for the next, and is next going to the end of the FMG June or December or not. So for July people landing in July, same content preparation as per FMG level, but people are coming January 2024 onwards to India. Let us start with the NEET PG version of the whatever resource you follow. Yeah, that's really amazing, sir. So दो चीज finalize कर दिया अब हमने. 4th of June exam date, second same IMG FMG कुछ नहीं है, तुम medical student हो, you have to everything, you just have to be confident. FMGs में क्या है, एक वो confidence बहुत बच्चों में lack है, जिसकी वजह से they think कि ये वो कर नहीं पाएंगे, बट वो ऐसा नहीं है. मतलब even I feel कि कोई पहले ऐसा लगता था जब सीनियर से मैं बहुत सारे मिलता था, they used to say like NEET PG stuff, even they say even FMG stuff is difficult to score 200, is difficult to score 150. But after giving FMG, even I know it's possible. And after scoring more than 200, I know I can crack NEET PG also.
वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ, बट वो कॉन्फिडेंस ना वो स्टार्टिंग में ही लैक करना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो इंटरेक्शन ऐसी हो जाती है इसकी वजह से। यस। कोई बात नहीं, with seniors like you we can set a new trend. डन सर। ओके नाउ सर, नाउ कमिंग Definitely. Yeah. प्रॉपर जून पार्ट, जो अभी दे आर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जून एफएमजी, and so let's say exam date is 4th again, so around 2.5 months is left approx. Okay, so let's divide 4 type of students are there. First group is who are repeating this FMG. I mean, they already gave previous FMG and they did not score 150. So, and second, who are giving for the first time. Okay, so strategy will be different for all those people, obviously, because जो repeat कर रहे हैं, they already watched the videos and all, they already solved QBank, they already solved grand test, so strategy would be different for them. And जो first timer है, strategy would be different for them. Okay, so let's start with first people जो repeat कर रहे हैं, and repeat में वो वाले जो who scored less than 130. Okay, so what should be the strategy for last these 2.5 months कि वो 150 क्रॉस करके और उनका भी एफएमजी हो जाए? Yeah. Yes. So Keshav, the group number 1 now, people who are repeating and who are below 130 in the last exam score, it means that there is a deficit to be filled up. There is a deficit in the preparation. You have to look within that. Did you follow only rapid revision videos for a couple of subjects or maybe 5, 6, 7 subjects and you felt that okay, that is sufficient, but now you realize no, it's not sufficient? Number 1. Number 2, you used X resource, but out of that X resource you found, oh, 12 subjects were really good in that resource, but 3, 4 were not that great. I'm not able to relate to them. I left them and went for the examination. So that's another deficit. So guys, what we should do, if you're scored 130 or below, then please look for an alternative possibility of learning for those subjects which you've done only rapid revision or you did not like in your primary resource of preparation. So how I would have done it, first of all, my dear repeaters, you are very close to my heart because I am myself a repeater in the NEET PG, so I can understand the pain and the dilemma and जो अंदर एक कुछ टूटता रहता है हमेशा, you know that I know. पेरेंट्स की आंखों में क्वेश्चन दिखते हैं कि यार वो ना कहे भी शायद पूछते हैं कि तुम पढ़ भी रहे थे कि नहीं, अगर तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हारा दोस्त कैसे पास हो गया, तुम नहीं पास हो पाए। हम वो क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और वो मैं वो फील कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब वेरी वेरी क्लियरली फील कर सकता हूँ। और वो पूरे दिन में 4-5 बार अगर तुम्हें फील हो रहा है, ऐसा नेगेटिव फील आ रहा है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, ऐसा नहीं कि तुम बहुत गलत हो। दैट इज वे नॉर्मल ह्यूमन ऐसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन रिपीट करने का एक बहुत बड़ा मतलब ये होता है, मैं अपनी पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करना चाहता। प्लीज अंडरस्टैंड, रिपीटर मीन्स आई वुड नॉट रिपीट द प्रीवियसली डन मिस्टेक इन माई प्रेपरेशन. On the exam day, I did some silly mistakes. I did not process information properly. कैसे करेंगे फिर? एक तो 19 सब्जेक्ट्स का एक टेबल बना दो, उसके सामने लिखना है क्या रिसोर्स यूज कर रहे हो, उसके आगे लिखना है आर यू हैप्पी विद इट. दूसरा, तीसरा, चौथा, जस्ट मेक लाइक दैट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स लाइक दैट. और फिर उसको एनालाइज करना अपने आप कि यार ये 3 सब्जेक्ट हैं या 4 हैं, ये मैंने किए ही नहीं थे और मैं ऊपर वाले का नाम लेके चला गया पेपर देने के लिए कि शायद कोई मैजिक होने जा रहा है और मैजिक नहीं हो पाया. तो समझ आया, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना. पढ़ाई के बिना मैजिक नहीं होता, पढ़ाई के बाद ही मैजिक होता है. और बाकी लोगों ने किया, केशव ने किया, इस बार हम करेंगे, है ना. तो ये सोचना है. तो नंबर 1, चूज एन ऑल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर दोज 3-4 सब्जेक्ट विच आर वीकर फॉर यू. जो आपके नहीं पिछले जो है, कोई बात नहीं, हर फैकल्टी अच्छा पढ़ाती है यार, सीधी बात है. लेकिन हमें किसी फैकल्टी का तरीका अच्छा लगता है और किसी का थोड़ा कम समझ आता है, तो कोई बात नहीं, कहीं और देख लेते हैं, है ना, ऐसे कर लेते हैं. नंबर 1. नंबर 2, कैसे रैपिड रिविजन का मतलब क्या होता है? रैपिड रिविजन मतलब रैपिड रिविजन, आप दोबारा से किसी चीज को देख रहे हो. तो मैं ना बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ रैपिड रिविजन का, मैं ऑनेस्टली बताऊं. मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि 2-3 सब्जेक्ट सबके ना बड़े बड़े वो होते हैं कि यार मेरे ना मजा नहीं आ रहा, मतलब मेरे को उसका थोड़ा टफ लगता है, मैंने अपने रिसोर्स भी चेंज करके देख लिया, फिर भी नहीं हुआ. उसके बाद तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैंने करा था लेकिन नहीं हुआ, इससे भी बात नहीं, मेरी ये सब्जेक्ट ही टफ, जैसे बायोकेमिस्ट्री मेरे लिए हमेशा टफ सब्जेक्ट रहा और रहेगा. तो मैं एक्स से किया, फिर वाई से भी करके देखा, टीचर बहुत बढ़िया थे दोनों, लेकिन मेरे बुद्धि में नहीं जा रहा.
उसका रैपिड रिवीजन अलाउड है बेटा। 2 सब्जेक्ट कोई ऐसे पकड़ लेना जिसमें उसमें ऑब्स गन ही नहीं होना चाहिए, सर्जरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि उसका मैंने मैंने कर लिया भाई, है ना। मेडिसिन के मामले में हाँ मैं ये बोलता हूँ, सबकी बड़ी बड़ी मेडिसिन एफएमजी को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बड़े ही सदे हुए तरीके से पढ़ना। सॉरी आकाश, में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। नहीं नहीं सर, इट्स बड़े फाइन। ही हाँ। है ना। मेडिसिन में एक ऐसी दोधारी तलवार है, बाई एज स्वॉर्ड है। इट कैन टेक सो मच ऑफ टाइम बट मे नॉट गिव दैट मेनी मार्क्स समटाइम्स, बट ट्रू छोड़ के जाना भी नहीं बनता। ट्रू। मेडिसिन के लिए आई विल ऑलवेज से गो सिस्टम वाइज, नेवर रीड मेडिसिन इन वन गो, डू सीबीएस में, डू सीएनएस। जैसे सीएनएस है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मुझे पूरा सीएनएस पढ़ने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे पता है पार्किंसोनिज्म, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, गिलेन बारे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मुझे पीवाईक्यू से पता लग जाता है कि यार भाई ये टॉपिक तो आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये आना है, ट्रॉमा आना है, हेमरेज, पता है ना। तो है। मेडिसिन ना थोड़ा सा हाँ रेट्रोस्पेक्टिवली करके या। मोट। अब देखो अगर हम एमआई छोड़ के जा रहे हो, गलत बात, पिछली बार नहीं आया चलो कोई बात नहीं, कोई ईसीजी नहीं आई कोई बात नहीं, इस बार आ गई तो फ्लटर है, फिब्रिलेशन, वीटैक है, क्या है, मतलब मुझे कार्डियोपैथी पता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज पता है, किसमें कौन सा मरमर है पता है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। पेपर का नाम क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट। प्लीज स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप तो मतलब पीएसएम पढ़ते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। स्क्रीनिंग मतलब मोटा मोटा पता करना कि भाई इस बंदे को ज्ञान है ना, डिजीज कैसे आती है। तो मान लो आपको स्पाइनो सेरिबेलर अटेक्सिया टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस नहीं भी पता न्यूरोलॉजी में, कोई बात नहीं। पार्किंसोनिज्म मुझे पता है, एपिलेप्सी भी पता है, स्ट्रोक भी पता है, इससे बात बन जाती है। तो क्या हुआ, मटेरियल डिफाइन कर लिया हमने मेडिसिन का, पहले सीवीएस किया, थोड़े दिन कुछ और पढ़ लिया, फिर सीएनएस किया, कर लिया। रेस्पिरेटरी बहुत टाइम नहीं लेता बेटा, एंडोक्रिनोलॉजी फिजियोलॉजी में कर रखी है, थायराइड, मतलब वही कुल मिला के 22-23 डिसऑर्डर है एंडोक्रिनोलॉजी के, पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है, यू नो, एडिसंस पता ही पता है, वही कशिंग्स घूम फिर पता के है, हाँ। हाइपोथायराइडिज्म पता, हमें पता भी है, लेकिन हम आंखें बंद बैठे शायद ना आए, आएगा पेपर में। आंखें मत बंद करो, आंखें खोल के आंखें डाल के मेडिसिन की आंखों में देखो बेटा, और उतना पढ़ के उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, मेडिसिन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, ताकि टाइम बच गया सर्जरी की रिवीजन का, ऑप्स की रिवीजन का, पीएसएम देख ली, ऑर्थो भी कर ली ठीक ठाक, पीडियाट्रिक भी कर ली, पेपर 2 संभल गया, तो बात बन जाएगी ना बेटा। तो इसलिए भाई समराइज कर देता हूं, अगर आपके नंबर 130 से कम है, 130 से कम है, नंबर 1, आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए कुछ सब्जेक्ट के लिए जो आपने छोड़े हुए। नंबर 2, मेडिसिन शायद वीक रह गई है, let us adopt a calibrated approach of reading medicine, not reading in continuity, segregated into CVS, CNS, respiratory endocrine इकट्ठा, नेफ्रो एंड rheumatology इकट्ठा। 4 सेशन में हमने मेडिसिन मोटा मोटा देख लिया, पीवाई को देख लिया, ये मेरा रहेगा बेटा 130 वालों के लिए। बेस्ट सर, ये मेडिसिन वाला अप्रोच वाज रियली अमेजिंग, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट स्टूडेंट आस्क इज हाउ टू स्टडी मेडिसिन। लाइक they focus more of the time rather than studying is just thinking of how to study medicine. वो तो सोचने में टाइम लगाते पढ़ना कैसे, पढ़ने की जगह, एंड वो सोचने में टाइम लग जाता है, वो समझ नहीं आता, बिकॉज मेडिसिन इज वेरी वास्ट। बट जो अप्रोच आपने बताई या इट्स रियली ना छोड़े बनेगा, ना ना छोड़े बनेगा, ना सारा पढ़ और पाए। ना पूरा खाए बनेगा। ट्रू। यस, अगर पूरा खा लिया तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे बेटा। आपने देखा जब, हैव यू सीन, जो मैं तो फ्रॉम विलेज सो आई नो दैट, गाय जितना तो खाना खा के बैठ में उसको बात रूमिनेशन, जुगाली करती बैठ के, वो हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको रूमिनेट नहीं किया तो भाई तुम जितना मर्जी अच्छा एसिड बेस बैलेंस आज पढ़ लो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसिडोसिस एकदम क्लियर हो गया भाई मुझे आज, एकदम ज्ञान प्राप्ति हो गई, एकदम एनलाइटनमेंट की फीलिंग आ गई, नहीं रिवाइज करो, बोल जाओ। क्या 4 जून को याद आएगा, एक भी वर्ड नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं याद आएगा भाई। सेम। रिविजन इज द की टू सक्सेस, तो उतना ही खाना है जितना रूमिनेट कर पाए, रिवाइज कर पाए। ट्रू सर। एंड again for now for the students जो who scored 130 to 150, like I believe कि they have knowledge, मतलब they like they have knowledge, they already studied, but the problem is with the MCQs and the GTs, like they, I think they did not practice enough MCQ or they did not give GT की वो एग्जाम में जाके वो हो नहीं पाया। जो 5 आर नहीं, नॉट इवन 9 to लेके टिल 4, जो इतने आर का गैप होता है, वो मैं वो नहीं कर नहीं पाया वहां पे। सो व्हाट डू यू थिंक सर, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दोस स्टूडेंट?
केशव, आपने अपने क्वेश्चन में ही उसका आंसर बता दिया बहुत बढ़िया से। आपने बोला कि कहीं ना कहीं एमसीक्यूज कम किए। आई गॉट टू इंटरव्यू लॉट ऑफ पीपल हु पास्ड एंड हु कुड नॉट पास आल्सो। जो लोग टॉप स्कोरर्स थे, जैसे आपका 200 प्लस है, बहुत सारे लोग जिनका 180 170 की रेंज में भी था, एक बात सब में कॉमन थी कि सर मैं पीवाईक्यू सारे करके गया था। एग्जैक्टली। मैंने क्वेश्चन बैंक के लिए टाइम निकाला था। मैंने हम्म। क्वेश्चन जल्दी करने शुरू कर दिए थे, ऐसा हम्म। नहीं कि लास्ट लिए रखे थे। और मैंने कम से कम भी एक मॉक और दो जीटी, या दो मॉक और एक जीटी, कम से कम 3 बार मैंने प्रोसेस को पूरा जिया था। जीटी और मॉक का मतलब ये होता है कि आपने सिमुलेशन क्रिएट किया अपने ब्रेन के अंदर कि पेपर दिन होना क्या है एक्चुअली। 19 सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही दिन में बिना ब्रेक लिए करना, और आप कितना रैपिडली स्विच ओवर कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री से इम्यूनोलॉजी से पैथोलॉजी से फिर से फार्माकोलॉजी, एक रैपिड फायर, अचानक एनाटॉमी क्वेश्चन आ जाता है। हम्म। डू यू थिंक ब्रेन को ये टेक्निक सीखनी नहीं पड़ेगी क्या? तुम सोच के बताना जरा, क्या ये, क्या हमारे अंदर इनबॉर्न है कि 19 सब्जेक्ट को इकट्ठा, ये बड़ा अननेचुरल पेपर है यार। ये मेडिकल साइंस ना बड़ी खतरनाक साइंस है यार। कोई दुनिया में ऐसा पेपर नहीं हो रहा, बता रहा हूँ, जिसमें 19 यूएसएमएल स्टेप 1 होता है, 6 महीने बाद स्टेप 2 दे लो, कोई बात नहीं। यहाँ नहीं होता है, इंडिया है भाई ये, 140 करोड़ जनता का देश है ये। यहाँ पे सब साम दाम दंड भेद, एवरीथिंग इज वर्किंग ओवर हियर। पेपर इज लाइक फ्री स्टाइल पेपर, आज ही सब बता जाओ जो आता है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू नो व्हाट, अगर ट्रेन मैंने करना। प्रैक्टिस ही नहीं किया 19 सब्जेक्ट को, आप ब्रेन को करके देख लो बेटा हिट। 19 कैटेगोरिकली डिफरेंट सब्जेक्ट, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत कोई मतलब बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाले सब्जेक्ट है बेटा, वो कोई गायनी है तो कोई सर्जरी है बेटा, ट्रू सर। वो ऑर्थोपेडिक है तो पीडियाट्रिक है। इधर एनाटॉमी अभी देखे आए हैं लंच से पहले। ब्रेन कहता है कि भाई कर क्या रहे हो मेरे साथ यार, कितना डेटा पूछोगे मेरे से। प्रैक्टिस करना पड़ता है। मिनिमम 3 जीटी, मैं 4 बोलता हूँ, 4, 2 जीटी 2 मॉक ओके। दे के जाना है। टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। आप अपने आप को एनालाइज कर लो बेटा। 131 से 150, 149 के बीच के लोग, ऐसा नहीं कि नॉलेज कम थी बेटा, मेरे को पक्का फेथ है नॉलेज बढ़िया थी, लेकिन हम उस दिन खेल नहीं पाए। थोड़ा खेल जो था थोड़ा सा वीक पड़ गया हमारा। तो खेल, क्रिकेट खेलना है वर्ल्ड कप, लेकिन गली क्रिकेट कभी खेली नहीं आज तक, अब वर्ल्ड कप खेलने निकल पड़े। तो भाई ब्लंडर हो जाता है ना वहां पे। कोई बात नहीं, पिछली बार किया, इस बार सुधार लेते हैं। रिपीटर मतलब मैं अपनी गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। और एक गलती मेरे से शायद हो गई थी कि मैंने क्वेश्चंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस बार पीवाईक्यू और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, और 4, 2 जीटी 2 मॉक करके मेरी रिवीजन और रेट्रोस्पेक्टिव स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी टेक्निक मेरी कला और बेटर हो जाएगी पेपर देने की। उससे बात बन रही। नेवर एवर थिंक कि तुम्हें कम आता था बेटा, लेकिन एग्जैक्ट। वो दिन हमारा दिन नहीं था। उस दिन को अपना दिन बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हम करेंगे इस बार करें। ट्रू सर। सर जो आपके सजेशन है वो काफी मतलब ऐसे रिलेटेबल नहीं होते, जो एग्जैक्ट एक कोई इवन स्टूडेंट ही कोई बता रहा हो सेम अपने उससे। आपके सजेशंस पूरे के पूरे वैसे ही हैं, नॉट ऐसे कि एज अ टीचर यू स्टूडेंट, आर टेलिंग कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। यू आर टेलिंग कि जैसे मेरे को वो, सेम वही उससे ही आगे कर रहे हो आप, मतलब आप ही बता रहे हो आपका भी सेम सिचुएशन था, आपने फेस किया, आप वो बता रहे हो। दैट्स रियली अमेजिंग सर। actually in our heart, actually in our mind, see, there are two ways of working on things. One is one idealism, idealism which is सारी मेडिसिन पढ़ के जाना, छोड़ मत देना। क्योंकि देखो मैं यूट्यूब पे ये चीज बोल रहा हूँ, सारी फैकल्टी बोले तुम क्या गलत चीजें बोल रहे हो ना यार, हम्म। प्लीज अंडरस्टैंड फॉर मी। बट आई बिलीव नॉट इन आइडियलिज्म, आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि चीजों को देखो, एफएमजी आईएमजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो एक्चुअली लोगों को समझ शायद नहीं आता है, लेकिन मेरे को, मैं दोनों ग्रुप डील करता हूँ। आईएमजी के पास 10 महीने होते हैं पेपर की तैयारी के लिए, मोटा मोटा। आप समझो ये मार्च में पेपर हुआ, अब अगला पेपर मार्च में होगा, तो देखो ना कितना टाइम। हम्म। एफएमजी का चैलेंज बहुत बड़ा है बेटा, सब्जेक्ट उतनी ही है लेकिन टाइम आधे से भी कम है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो इसके लिए क्या होता है, जब स्पेशल सिचुएशन होती है तो स्पेशल तरीके अपनाने पड़ते हैं उसको हैंडल करने के। तो आई 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 मे बी साउंडिंग लिटिल रॉ ओवर हियर, बट मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल है ना, उसी को फॉलो किया जा सकता है, उसी से अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसी से लोग पास हो रहे हैं, हम भी पास हो रहे यस सर। Okay, so thank you so much, sir. Now, coming to the students who are giving this FMG for the first time. So again, there can be two kind of student. First, who already like
prepared 19 subjects. They already watched the videos, they did QBank, and they are on the revision phase. Okay. Or second type of students are who does not even started preparation, या फिर उन्होंने जस्ट एक सब्जेक्ट किया होगा, या फिर मतलब वो भी इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन पे, नॉट रिवीजन फेज पे. तो व्हाट शुड द स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ऑफ देम? लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट की जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. जो पढ़ चुके हैं वो तो उनको तो पता ही हो क्या कर रहे हैं. जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एक चीज बताऊं कि किसी भी प्रेपरेटरी साइकिल में कोई भी एग्जाम, चाहे वो नीट, पीजीआई, एनआईसीटी या एफएमजी होता है, क्या होता है कि शुरू का टाइम हमेशा लैग का टाइम होता है. और मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा धीरे से स्टार्ट करते हैं, मतलब, है ना. तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें पिछले कल का गिल्ट बहुत तंग करता है बेटा. आपने देखा है कभी कि जब भी हम सोचते हैं ना यार आज स्टार्ट करते हैं, पता है क्या मन में ख्याल आता है? यार 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे निकल गए, होली के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद तो पढ़ा ही नहीं, मैं मन ही नहीं कर रहा है ना. लेकिन आपके दो ऑप्शन है. आप अपने पिछले कल का सोच के अपना आज भी खराब कर लो, या फिर ये बोल लो कि भाई जो हुआ सो हुआ, जब जागे तब सवेरा. ये जो सारी प्रोवर्ब्स है ना बेटा, जो कहावतें हैं, ये ये प्रूव करती हैं कि ह्यूमंस जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही हैं जिन्होंने गलतियां करी, फिर संभाला, फिर देखा कि चाहे लेट भी स्टार्ट किया था, रिजल्ट अच्छा आ गया, तब किसी ने बोला जब जागे तब सवेरा भाई. तो आप लोगों का सवेरा आपकी वेट कर रहा है. अपने कल के अंधेरे से आज का सवेरा मत गवाओ भाई. हो गया सो हो गया. अब क्या करना पड़ेगा? बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज द मेन, यू नो, बिल्डिंग मटेरियल ऑल्सो. और थोड़ी सी रुकावट भी टाइम की एफएमजी एग्जाम के अंदर है. तो एक काम करते हैं ना बेटा, आप अपने आप को पूछो कि आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है. मुझे तो ये वर्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे इस वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता, ये मोटिवेशन वर्ड. यू आर वेरी ग्रोन अप पीपल इन साइड योर हेड. तभी तो आप बाहर के देश में सर्वाइव करके यहाँ पहुंचे हो. आप अपने आप को पूछ लो कि पिछले 6 साल तब तक कोई मायने नहीं रखेंगे जब तक ये पेपर पास नहीं हो जाता. तो क्या उसके लिए मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. मैं एफएमजीस को बहुत अच्छे से जानता हूं. अब तो बहुत ही अंदर से ग्रोन लोग होते हैं, थोड़ा सा खुश रहने वाले लोग होते हैं, अच्छी बात है. लेकिन एक बात अगर आप ठान लो अपने मन में कि जो हुआ सो हुआ, कर लिया भाई. जब भी जो नहीं पढ़ पाए कुछ, अब से टिक के पढ़ लूंगा. और अगर मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी और पीवाई क्यूज देखता चला गया, और जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जो अगर हमें कुछ ज्वाइन किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, मैंने कोशिश करी उस दिन का उस दिन रिवाइज कर लिया. और जब वो टेस्ट एंड डिस्कशन फॉर्मेट स्टार्ट होता है, तब एक रिवीजन और कर ली. और आखिर में आई कम अगेन ऑन द यूट्यूब टू टेल यू कि आखिर में हम कैसे फास्ट पेस रिवीजन करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे 1 हफ्ते पहले का. तो 3 बार हमने फिर भी देख लिया. रिवीजन के मामले में मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा. नेवर एवर गिव टू मच टाइम टू रिवाइज अ सब्जेक्ट. अगर आपकी एक रिवीजन का एंड रिजल्ट 60-70% ऑफ सब्जेक्ट आपको दोबारा से रिवाइज हो गया, यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छी बात है. मल्टीपल क्विक रिविजन्स आर बेटर देन सिंगल एग्जॉस्टिव रिवीजन. बात समझना बेटा. क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग बड़े पैशनेट हो जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री पूरी रिवाइज करेंगे, 6 दिन लगा दिए. मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, 6 दिन लगा तो दिए बेटा, लेकिन जब 6 हफ्ते बाद मैंने उसी एंजाइम का नाम पूछा, कुछ गायब. नहीं याद आया. सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी नहीं आया, केशव को भी नहीं आया, किसी को भी नहीं आया. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम ऑल्सो बेटा. आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हो, कितनी शिद्दत से टाइम लगा रिवाइज करते हो, भूल फिर भी जाना है. तो अब मुझे पूछ रहे राजीव, तो पढ़ने का फायदा है क्या? तुम कह रहे भूल तो जाना ही है. मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार पढ़ना आने वाले 3 रिवीजन की तैयारी होती है. लेकिन ये रिवीजन फास्ट होनी चाहिए. हर रिवीजन पिछली रिवीजन का हाफ टाइम लेना चाहिए. फिर कैसे याद हो जाता है? क्योंकि जब बार बार एक डेटा सामने, चाहे फास्ट पेस जाता है ना बेटा, तो दिमाग में बैठना शुरू होता है. तो जो लोग लेट शुरू करें ना बेटा, एक बार यार ना, पिछला कल छोड़ देते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये स्क्रीन पे ना बोलना, बहुत ही आसान है. लेकिन जब हम अकेले बैठे होते हैं ना, फिर भी हमें पिछले कल का, यार मेरे फ्रेंड पढ़ रहे थे मैं नहीं पढ़ा, मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ रही थी मैं नहीं पढ़ा, ये पास होगी मैं रह गया तो क्या होगा, रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए. ब्रेन तो यार क्या क्या प्रोजेक्शन करता है. ब्रेन दो चीजों में बटा हुआ है. पिछले कल का गिल्ट हमें सोने नहीं देता, और आने वाले फेले की चिंता में सताती रहती है. आज का पता ही नहीं.
एग्जैक्टली। ये दो चीजें हमें बार बार तंग कर रही हैं। जिसने ये समझ लिया ना बेटा, उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है कि भाई ये समय जब मैं केशव को बात कर रहा हूँ, केशव के साथ, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इससे पहले क्या चल रहा था या बाद में क्या होगा मुझे मायने नहीं रखता। मैं अभी केशव के साथ, क्योंकि मैं और केशव ये चाहते हैं कि एफएमजी जो है अपना लाइफ को प्रॉपर एक शेप दे पाए, तो ये उसकी कोशिश है। तो केशव भी अभी यही कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इस समय हम दोनों एक दूसरे से पूरा फोकस मेंटली जुड़े हुए हैं। यस। सेम तुम्हें भी सीखना है बेटा। पिछले कल छोड़ दो भाई, आने वाले फेलियर की चिंता छोड़ दो। अगर फेलियर हमारी किस्मत में लिखा ना बेटा, फिर ऊपर वाला जान, मैं अपना बेस्ट खेल खेलने जा रहा हूँ, तो वही अमेजिंग। करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा बेटा, डट के पड़ेंगे ना बेटा, तो अभी भी जो स्टार्ट कर रहे हैं किया जा सकता है। बथेरे लोगों ने किया, जो लोग जुलाई में पहले हफ्ते में लैंड किए थे 2020 में, हम्म। जब कोविड चल रहा था, और सबसे टफेस्ट पेपर आया था पूरी हिस्ट्री का, अगस्त में। अगस्त 2020 पेपर, या। उसमें बहुत सारे लोग वो पास हो गए जो जुलाई में भी आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको भी फॉर्म भरने का चांस दे दिया था, है हम्म। ना। वो लोग तो अभी आए थे भाई जुलाई में, अगस्त में पेपर भी हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी कर सकते कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर वो कर सकते हैं उस टफेस्ट पेपर में, तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Amazing, sir. Amazing. And sir, just one more thing. This is 2.5 months are left. So is it possible to do all the 19 subjects in this and plus 3 revisions? Because even watching videos will take time. Yeah, even watching rapid revision will take time. And then go for 3 revisions. So is it possible to do in this 2.5 months and giving GTs also along with it? नो, अब ये बड़ी सही बात है। आइडियलिज्म बोला कि डॉक्टर धवन बिल्कुल ये मत बोल देना कि ये छोड़ के चले जाओ और ये पढ़। लेकिन अब जो बिल्कुल कृष्ण बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली है कि अब क्या, अब 2.5 महीने में रिवीजन 3 तो होंगी नहीं अगर 19 मिनट करने हैं। तो बेटा अब ये जो स्टूडेंट है ना, जो जो अभी स्टार्ट कर रहा है, जो लेट हो गया स्टार्ट करने में, Hmm. उसको एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? जो 12 से 13 सब्जेक्ट तक अपना टारगेट लेके चलते हैं, अच्छे से रिसोर्स को दिमाग में उतार के रिवाइज करी जाए। Hmm. अगले जो 12, मान लो 12 डाल दिए, इसमें 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके मैंने रैपिड रिवीजन वीडियो कर ली, ठीक Oh. है। और 3 जो बच गए हमारे, मान लो उसमें पीवाईक्यू Hmm. और एक टीएनडी पेपर आते हैं इंस्टीट्यूट्स के, है ना। Hmm. उसके बेसिस पे उतना कंटेंट मैंने 2-3 बार देख लिया। जैसे एनेस्थीसिया मान लो मेरे से नहीं हो पाया, फॉर Hmm. एग्जांपल मान लो नहीं हो पाया, मैंने देखा ही नहीं एनेस्थीसिया आज तक, मेरा टाइम ही नहीं बचा। लेकिन मुझे इतना पता है कि मलम पट्टी क्लासिफिकेशन आ जाती है, आ जाती है। मैंने वो क्वेश्चन में कर रखा था। तो एटलीस्ट मेरा वो क्वेश्चन स्कोर हो ही गया ना यार। तो क्या होता है कि अगेन, नॉट नॉट आइडियलिज्म बेटा, है ना, प्रैक्टिकलिटी कहती है कि 2.5 महीने में डॉक्टर धवन मैं 19 मिनट को 3 बार तो नहीं कर सकता, तो 12 + 4 + 3 का एक कॉम्बिनेशन बिठा के अपना पूरा खेल खेल जाओ, ऊपर वाले का नाम लेके कि मे गॉड ब्लेस माय हार्ड वर्क। ये सर यही प्रैक्टिकल जो अप्रोच थी ना, ये सुनने के लिए नहीं मिलती। जैसे आपने फर्स्ट बताया कि कर लो हो जाएगा, ये तो नॉर्मली किसी ही पूछो, किसी बच्चे से भी पूछो, जैसे अगर मैं पास आउट हूँ मैं भी सेम चीज ही बोल दूंगा कि हो जाएगा। बट ये तो हो गई आइडियलिज्म वाली बात। देन अगेन यू मेंशन द प्रैक्टिकल थिंग, ये बच्चे चाहते हैं कि ये कहीं से उन्हें पता चले कि ये प्रैक्टिकल वाली अप्रोच क्या है। बोलना इजी है कि हो जाएगा, बट जो अभी आपने बताया 12 4 and 3, 12 4 and 3 था ना, हाँ 12 4 and 3, ये सर अमेजिंग थिंग थी। अगर मेरे टाइम पे तो किसी ने बताया नहीं था उस टाइम पे, बट आगे जो भी बच्चे कर रहे हैं इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट। एंड सर लाइक यू मेंशन 12 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 19। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एज अ स्टूडेंट आएगा कि वो व्हाट आर दोस 12 सब्जेक्ट्स जिस पे हमें मेन फोकस करना चाहिए, एंड रेस्ट वो 4 + 3 कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। एक तो 12 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट होने ही चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। हम्म। सर्जरी होना चाहिए, ओबीजीवाई होना ही चाहिए, मैं पहले तो आई और ईएनटी होने चाहिए। आईएनटी पता है छोटे से बैठे अच्छे 17 क्वेश्चन आ जाते हैं और 13-14 हल हो जाते हैं, बहुत अच्छा मजा आ जाता है ना। सर्जरी, ओबीजीवाई, आई, ईएनटी, पीएसएम। लोग पीएसएम को थोड़ा इग्नोर करते हैं कि भाई कैसे होगा, लेकिन इसको एज अ माइनर मत ट्रीट करना, इसको मतलब कहीं और से मत करके इसका मेजर कंटेंट देख लो। क्वेश्चन सारे नहीं भी हो पाते, लेकिन फिर भी पीएसएम थोड़े बहुत क्वेश्चन दे जाती है, अच्छी बात है। हम्म। आपको आंसर। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में एक सब्जेक्ट आप इधर डाल सकते हो और एक आप 4 वाले में डाल सकते हो।
ऑफर है आपके पास, जहाँ जैसे मेरी बाइक में से उधर जाती 4 वाले में, मैं नहीं करता भाई। नॉट प्रेफरेंस माइक्रो में जैसे। शायद थोड़ा झेल लेता, लेकिन उधर नहीं करता। तो एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, हम्म, देखो अगर आप सर्जरी का सिर्फ रैपिड रिव्यू देख के जा रहे हो तो गलत बात है। आप भी जानते हो ना बेटा, पिछली बार ऑन्को सर्जरी कितनी डोमिनेंट थी, हाँ सब एग्जैक्ट। पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ, और मान लो अगली बार सर्जरी ठीक ठाक आ गई, हम्म, 35 क्वेश्चन आ गए, और लोग जनता के जिन्होंने पूरा पढ़ रखा था सर्जरी अच्छे से, भाई ज्यादा नहीं तो 23-24 क्वेश्चन निकल गए, 32 में से 23-24 क्वेश्चन निकल गए। काफी सपोर्ट मिल जाता है बेटा, है हम्म, ना। लास्ट में मैं मानता हूँ सर्जरी टफर थी, लेकिन हर बार ऐसा पैटर्न नहीं होता बेटा, है ना, क्योंकि हो जाता है कुछ चीजें, लेकिन सर्जरी इज इम्पोर्टेंट, ओबीजीवाई इंपॉर्टेंट, आई, ईएनटी, मेक श्योर दैट नन ऑफ यू शुड लीव। फोरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट होता है, बिनाइन सा सब्जेक्ट है, एक बार देख लेते हैं, और जो आईपीसी कोड लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। और एनाटॉमी, जिसको भी दिक्कत आती है एनाटॉमी में, मैं सिर्फ छोटी बात बोलता हूँ, आप अपर लिम लोअर लिम करके ना मोटा मोटा ऑर्थोपेडिक साथ में कर लोगे। अपर लिम लोअर लिम कर लो, ऑर्थोपेडिक साथ में कर लो, सारी वो जो क्लॉ हैंड ये हैंड सब ना, वो सब चीजें मिल मिला के होना चाहिए। तो गैस मैं ना ये तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैंने बोले ना, ये उन 4 और 3 में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सबका मैं मानता हूँ। अब जैसे कोई कहता है मेरी सर मेरी तो पैथोलॉजी वीक है, लेकिन पैथोलॉजी पूरी वीक नहीं होती, हमने देखा कभी, किसी सिस्टेमिक वीक होती है, किसी जनरल वीक होती है। तो एग्जैक्ट। कोई बात नहीं, वहां मतलब है कि थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से कि भाई सिस्टेमिक मेरी वीक थी, तो मैंने इसके क्वेश्चन कर रखे हैं, जनरल मेरी अच्छी थी, रिवाइज कर रखा है, तो मिलके बात बन जाती है। सो लेट्स प्ले दैट वे, दैट्स केशव माय आइडिया। Okay, sir, amazing. And sir, I also think कि like जैसे you mentioned pathology, like these 2.5 months का जो time interval है, it should not be like कि pathology पढ़नी है तो full pathology ही पढ़नी है, मैं pathology में expertise कर लूंगा and then नो, उसके बाद exam दूंगा। ये approach I don't think ये होना चाहिए, because it's not the time, it's time to study smart। कि अगर जैसे लाइक यू मेंशन जनरल आती है, सिस्टमिक वीक है, ठीक है, तो जनरल स्ट्रांग है, जनरल तुम्हारी मेन प्रेफरेंस हो गई, सिस्टमिक पढ़ के चले जाओ, थोड़े क्वेश्चन से निकल जाएंगे, एग्री। बट बिल्कुल, है केशव ना। ने समराइज कर दिया बिल्कुल, केशव ने बिल्कुल सही बोल दिया कि भाई चैंपियन बनने नहीं निकल जाना हमने, कि मैं 6 सब्जेक्ट तो चैंपियन हूँ, और मुझे 4 का थोड़ा पता है, और 2-3 मैंने वैसे देख रखे हैं, बाकी का पता ही नहीं। वो स्ट्रेटजी तो तुम्हें भी पता है ना, 2.5 महीने में पूरे तो नहीं हो पाते, तो इसलिए लेट अस रियली मेक श्योर कि जैसे कि मैं और केशव आपको बता रहे हैं कि मैं एग्जांपल दे रहे हैं पैथोलॉजी जैसे फार्माकोलॉजी है। जैसे अब कोई कहेगा कि यार फार्मा तो यार सच में यार इट इज टफ ना, तो मुझे पता है कि यार जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर जुमैब्स हैं फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ उसमें एक आधा क्वेश्चन आना है, तो अभी एक बार पढ़ लिया ना आपने, अब ये जो जुमैब है ना बेटा, एग्जाम से जो एक हफ्ता पहले का टाइम होगा ना, तब पढ़ेंगे पढ़ेंगे बेटा। लास्ट। अब पीएसएम का डेटा है फॉर एग्जांपल, आप पढ़ लो जितने मर्जी, फिर भूल जाना है। तो ये उसके लिए आपको ब्रेस्ट कैंसर की एक्सिलरी लिम्फ नोड की स्टेजिंग फिर भूल जाती है, आखिर में करेंगे, डोंट वरी, विल कम बैक टू यू, विल रिमाइंड यू कि लास्ट हफ्ते में क्या करना है। लेकिन जैसे कि केशव ने बोला, स्मार्ट स्टडी कर, स्मार्ट स्टडी का मतलब कैलिब्रेटेड अप्रोच, जब मुझे सब्जेक्ट में 60% फीलिंग भी आ जाए ना कि भाई ये हो गया मामला, तो आगे बढ़ जाना बेटर, यस। अगले सब्जेक्ट पे चले जाना बेटर। एंड सर जैसे लाइक यू मेंशन की सब्जेक्ट्स 12 4 3, बट अभी अब ये 2.5 मंथ्स को, इफ समवन वांट्स टू डिवाइड 2.5 मंथ्स, कि फर्स्ट रीड उन्हें कितने टाइम में कर लेना चाहिए, सेकंड और फर्स्ट रिवीजन कब उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच लाइक अकॉर्डिंग टू यू, कि डेज कितने अलॉट होने चाहिए फॉर दीज थिंग्स। यस, सब भी जो लोग फ्रेश पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि अभी लेट शुरू किया, जब भी किया, एक बात याद रखना बेटा कि 30 अप्रैल तक आपका कंटेंट सारा एक बार जो जो आपने जहां से करना था वो कर चुके आप। अब आपका जो 1 मई से लेके 27 मई तक का टाइम हुआ, मैं 4 जून को भूलूंगा नहीं बेटा, तो मैं भी छाप लेता हूँ दिमाग में कि 4 जून, 1 मई से 27 मई तक का जो टाइम है, 27 डेज का जो आपका साइकिल आपका, उसमें अगर आपके इंस्टीट्यूट में टीएनडी हो रहे हैं, आपने ऑनलाइन कोई टीएनडी ज्वाइन कर रखा हुआ है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट तैयार करने, जो 100 क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में डरमा के दिए हैं, वो और ध्यान से अपने नोट्स देख लेने दोबारा से, कितने नंबर आ रहे हैं चिंता मत करना बेटा, हम वी आर नॉट हेयर टू असेस यू, वी आर हेयर टू असिस्ट यू। अब तुम्हारे नंबरों में पास हो क्या होना है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 से 27 मई तक एक साइकिल और कंप्लीट होगा बेटा रिवीजन, ये उन लोगों के जो 2.5 महीने वाले है ना, तो वो हो गया। और लास्ट में एक हफ्ते में क्या करना होगा, डेफिनेटली विल कम बैक टू यू एंड लेट यू नो डे।
वाइज क्या क्या करें। तो ये मेरा ब्रॉड एक तरह का टाइमलाइन होगा कि भाई 30 अप्रैल तक जो मैंने सीखना करना सीख लिया, कट ऑफ, अब और नया नहीं। एक में 27 मई एक साइकिल रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज, जिसमें पीवाईक्यू होने ही चाहिए, और बाद में लास्ट ऑफ में फिर विल कम बैक टू, विल डू इट अगेन। तो आपने 27 मई तक का स्केड्यूल दे दिया, उस टाइम हम एक वीडियो प्लान कर लेंगे 27 मई से जो नेक्स्ट एग्जाम डेट होगी, कोई बात नहीं, रिवीजन डेफिनेटली स्केड्यूल। हाँ मतलब आप बना के दे दोगे, मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ डेफिनेटली आई वुड, इट विल बी माय प्लेजर ऑनेस्टली। great sister. And another thing is कि like we already, and हाँ, last group of students जो already पढ़ चुके हैं and they are on the revision phase, so any advice for them, क्योंकि I think they already know कि वो क्या कर रहे हैं, they already know their strategy, they already know एक कि एक बाइस केशव, हाँ बिल्कुल। वो वाला ग्रुप जो केशव वो है ना, उनको एमसीक्यूज करने शुरू कर देने चाहिए बहुत अच्छे से। क्यों? वो एक बार वो वीडियोस देख चुके, नोट्स अंडरलाइन हाईलाइट हो चुके, यहाँ वहाँ छोटी मोटी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब भूमिका बन चुकी है। अब इस भूमिका को पूरा और सोलिडिफाई करने के लिए जो पीवाईक्यूज होते हैं, या आपके कोई भी रिसोर्स यूज करते हो, आप क्यू बैंक यूज करते हो, वो एक्चुअली क्वेश्चन बैंक क्या है, वो लाइट हाउसेस हैं ये दिखाने के लिए कि इस पूरे नोट्स में जगमा जो ना जगमाने वाली चीजें कौन सी हैं, जो बड़े, अरे यार ये तो पर्ल ऑफ विजडम है, इसमें क्वेश्चन आया, जैसे ईएनटी है फॉर एग्जांपल, एंजियोफाइब्रोमा आना ही आना है, नेसोफेजिक आस्थमा आना है। तो आपको, अगर आप पढ़ चुके 19 सब्जेक्ट कर चुके, जहां से भी किए, ऑल गुड रिसोर्सेज है ना, लेकिन अब पीवाईक्यूज और एक रिसोर्स से एमसीक्यूज कर लेने चाहिए, उसके बेस पे अपने इन्हीं नोट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली फिर से देख ले। लेकिन ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़नी, जैसे एंजियोफाइब्रोमा आया आपके पास, तो एक बार वो टॉपिक देख ही लिया ना, जब 3 बार क्वेश्चन दिख गया भाई, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हाउ वी डू इट, वी डीकोड द एग्जामिनर ब्रेन। हम लोग भी फैकल्टी पे करती, वी ट्राई टू डीकोड द एग्जामिनर ब्रेन। तो आप भी कर सकते हो, है ना। मैं तो आई बिलीव इन वन थिंग, दैट यू गाइस आर मच मोर स्मार्टर देन एनीबॉडी इज एक्चुअली। तो आपको कैसे करना है डीकोड बेटा, वो जो पीवाईक्यू है ना बेटा, वो चाबी है उसको अनलॉक करने की। वो वाले नोट्स के पार्ट देख लिए, तो क्या हो गया कि 30 अप्रैल तक आपकी एक रिवीजन कंप्लीट हो गया, आपको एडवांटेज मिल रहा है वहां पे। एक बार खत्म करते 30 अप्रैल तक यार, फिर जो मई का महीना, जो 27 दिन का साइकिल, एक और लेयर बन गई, और जो लास्ट वाला जो एक हफ्ता है, वो तो हम आएंगे आपको बताने के लिए। तो आपके पास क्या हो गया कि एक और लेयरिंग होगी, लेकिन बहुत लंबा टाइम ही लेना बेटा, एक साइकिल खत्म करते 27 महीना आ जाए बेटा, वो ध्यान रखना बस। एंड जस्ट सर, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग इसमें कि लोग पीवाईक्यू कर लेते हैं, but what they do is, if the examiner is asking T4 stage of breast cancer, so they will go and read the only T4 stage, but PYQ से important topics लेने हैं, PYQ रटना नहीं है, correct? नो, मतलब सिर्फ T4 मत बिल्कुल। रट लेना, it means they are asking कि important topic is breast cancer staging, so read the staging, and staging पूरी learn करनी है। So एक just मेरे को ये ऐड करना था। So I think sir, that पीवाईक्यू बेस्ड रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन, केशव, हम लोग क्या करें कि क्वेश्चन बेस्ड रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द नोट्स सेक्शन, rather than, as Keshav rightly said, example of T4, I will read T1 to T4 with axillary lymph node staging with the treatment protocol of each and individual staging also. वो मतलब है, इस मतलब ब्रेस्ट कैंसर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने खत्म कर लिया भाई। इंटरसेप्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने हो गया भाई। सिग्मोइड वॉल्वुलस आना है, मैंने देख लिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस वर्सेस क्रोन डिजीज, मुझे पता है आना। So I think that's all for this FMG June session. So anything you want to add, sir, for students who are preparing? Any कुछ? I think सारा तो cover हो गया almost. But if you want to add anything. लास्ट चीज मैं बोलूंगा, लास्ट चीज केशव, एक ही चीज बोलूंगा बेटा, कि देखो किसी भी एग्जाम के साइकिल में हर रोज 2 से 4 बार नेगेटिव फीलिंग आना कि मेरा नहीं होना, मुश्किल लग रहा है। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो ये तो लास्ट एफएमजी एग्जामिनेशन कह रहे हैं ये लोग। तो अगर आप ये ऐसा फील करते रहते हो बीच बीच में, तो इसका मतलब ये है कि आप परफेक्टली नॉर्मल इंसान। नेगेटिविटी कैन नॉट बी ब्रॉट टू जीरो, यू कैन नॉट। मैं अगर बोलूं डॉक्टर धवन को कभी नेगेटिव फील नहीं होता पूरे दिन में एक बार भी, तो डॉक्टर धवन साक्षात झूठ बोल रहे हैं। मैं ईमानदारी से बात मानने को तैयार। Negativity is part of human existence. There cannot be any positivity
विदाउट नेगेटिविटी। आप देख लो, कोई भी चीज देख लो, दो दो एंड होते हैं हर चीज के बेटा। लेकिन नेगेटिविटी कैन बी ब्रॉट टू अ लोअर लेवल, थोड़ा कम कर सकते। कैसे टैक्टिक्स होते हैं उसके? हार्ड वर्क। आप करके देख लो बेटा, किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, 3 दिन टिक के पढ़ लो, 3 दिन टिक के पढ़ लो, 12-12 घंटे की आउटपुट निकालो, चौथा दिन वैसे ही पॉजिटिव हुआ। अब किसी भी टोटली ज्ञान की जरूरत नहीं है बेटा। टोटली एग्री सर इस पे। हार्ड वर्क, हम्म, हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीडोट टू नेगेटिविटी। और ये बेटा, ये ना कोई कोटेशन नहीं है, प्रोवर्ब नहीं है जो कहीं से बोरो किए गए हैं। ये वो रियल। साक्षात चीजें जो जी गई हैं, अपनी गलतियां की हैं, उनको सुधारा है, और सुधार के अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। मतलब अगर मेरे जैसे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बहुत ही ऑनेस्टली से बता रहा हूँ। मैं बहुत ही मॉडेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे, ऑनेस्ट हो रहा हूँ कि आई डोंट हैव दैट हाई आईक्यू कि बहुत ही भाई जो पढ़ लिया अमर हो गया, इधर छप गया, ऐसा नहीं है। मेरे को भी वही चैलेंज, पढ़ के भूल जाता हूँ मैं, मेरी फितरत है। नेगेटिव फील होता है, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब भी थोड़ा सा होता है ना, ऐसे कोई थोड़ा बहुत, मैं उठ के चाय बनाने लग जाता हूँ। आई मेक कप ऑफ टी, कॉफी। थोड़ा दिमाग को कंफ्यूज कर दो यार, दिमाग को कंफ्यूज करने, दिमाग को कर क्या रहा है भाई। जब मैं कोई इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये मुझे कंफ्यूज कर देता है यार। आप करके देखना, 3 4 5 6 बार करोगे ना, ब्रेन नेगेटिव थॉट कम जनरेट करेगी भाई, ये मेरे काबू में नहीं आता अभी। टोटली और एग्री। सबसे बड़ी बात, जब भी नेगेटिव थॉट आए, ऊपर वाले की तरफ देखना भाई, बोलना कि भाई मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तू संभाल ले। और जनरली वो संभाल लेता है। अस्सी टोटली परसेंट गेम हमारे हाथ में है, इस बात बीस पे। परसेंट उसके हाथ में है। देखी जाएगी, अपना बेस्ट करते हैं। या सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये जो आपने एंड की बात बोली, इट रियली, इवन मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर रहा, मेरी तो खत्म हो गई हुई प्रिपरेशन, बट ये मेरे को ही मोटिवेट कर गया कि जब नेक्स्ट टाइम मेरे को प्रिपरेशन करना होगा, इवन आई नो कि अब मेरे को कैसे फेस करना है। So thank you so much, sir. And just one last thing, like we already talked about कि जून एफएमजी, but people, अगर दिसंबर एफएमजी हुआ, by chance हुआ, अगर high chance है, so what should be the strategy? Like students are confused between offline coaching and the online coaching. So if someone is preparing for December, okay, so what type of students को online join करनी चाहिए and what type of students को offline join करनी चाहिए? Because I think कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, दे थिंक कि वो ऑफलाइन पढ़ लेंगे, बट ऑफलाइन पढ़ना, घर पे बैठ के खुद से वीडियोस देखने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई होनी चाहिए। वो बहुत जल्दी Yeah. नीचे गिरता है एंड बहुत जल्दी वो डिमोटिवेशन हिट हो जाता है उसके अंदर, एंड एक स्केड्यूल पे वो खुद फिक्स रहना पड़ता है। इन ऑनलाइन कोचिंग यू जस्ट गो एंड वहां पे तुम्हें एक फिक्स स्केड्यूल है, तुम वहां से नहीं उठ सकते। यू हैव अ ऊपर से मतलब एक डंडा है वहां पे कि एक प्रेशर परमानेंट है। तो व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर अकॉर्डिंग टू यू, जिन्हें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना चाहिए? ट्रू। हमारा हर हर इंसान डिफरेंट है। और आप जानते हो, कुछ लोग हमारी क्लास में जो होते थे, आपको यूनिवर्सिटी क्लास याद होगी, या अभी भी जो लोग पढ़ रहे हैं वहां पे यूनिवर्सिटी, पता होगा, कुछ लोग दिखते हैं जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं, वो थोड़े डिफरेंट प्राणी लगते हैं हमें यार, कि भाई ये लोग बड़ा पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते यार इतना। तो हर बंदा यूनिक है। आप अपने आप को पूछ के देखो कि क्या आपको पूरी आजादी दे दी जाए तो क्या आप अपने आप को नियंत्रित रख पाते हो? कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ? और आप बिल्कुल लूज हो जाते हो, फिर तो आपका मोटिवेशन खत्म, मतलब फिर कुछ और ही शुरू हो जाता है। अगर आप वैसे प्राणी हो तो ऑफलाइन जो कहते हैं फेस टू फेस क्लासेस में बोलते हैं, वो आपके लिए बेटर है। और अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने वहां कर रखे हैं, मुझे पता है क्या रिवीजन करना है, तो एक स्केड्यूल बना लेना है। हम जुलाई में फिर बात करेंगे उस बारे, डोंट वरी, तो जब एग्जाम क्लैरिटी भी आ जाएगी, तो कि कब तक क्या खत्म हो जाना चाहिए मेरे, अगर आप ऐसा कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सिंपल है। rather than asking anyone, ask yourself, do you need someone to control you, or you can control yourself when every freedom is given to you? If you are number one, you are कि नहीं भाई, अगर मेरे ऊपर, जैसे केशव ने बोला कि डंडा नहीं है ना, तो मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा, तो फिर तो भाई ऑफलाइन जाना पड़ेगा, फेस टू फेस जाना पड़ेगा। एक पूरे दिन का 12 घंटे टीचर ही नहीं जाएगा, तुम कहाँ चले जाओगे बेटा, है ना? 3 दिन में ईएनटी करनी है बेटा वहां पे। लेकिन तुम्हें ये पता है कि भाई अगर मेरे को 3 दिन में वीडियो भी देखने पड़ते हैं ना, अगर अगर तो मैं तो भी टिक के देख लेता हूँ। अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मैं वो भी देख लूंगा, या ऐप वीडियोस है मैं वो भी देख लूंगा, तो कोई बात नहीं। एक चीज है ना, किसी को कॉपी मत करना बेटा लाइफ में कभी भी। कोई क्या कर रहा है वो उसका निजी मामला है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हें क्या सूट करता है ना बेटा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया तो तुम भी ज्वाइन कर लोगी, कंपनी रहेगी उसकी या तुम्हारी,
वो तो ज्यादा बनता नहीं। ये टाइम पढ़ने लिखने का ना बेटा, वो अपना कर रही है तुम अपना कर लो, जो उसको सूट कर रहा है वो कर ले। भाई मैं तो ऑफलाइन के बिना नहीं पढ़ पाऊंगा, भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, तू पढ़ ले अपना, चले जाते ना भाई, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। ये जो टाइम है ना बेटा वो पढ़ने का होगा, तो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेना। आई एम श्योर आप बहुत समझदार इंसान। So I think it's really great advice. Now अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे what they have to do, खुद फिगर आउट कर लेंगे क्या करना है. So that's all. I think that's all the questions I have, sir. So thank you, sir. Anything you want to add इसके अलावा? आपने ऐड तो कर दिया. एब्सोल्युटली। थैंक यू केशव, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग So दिस much इंटरेक्शन। for joining, sir. And future में sir we'll do more session जैसे जैसे भी close आ रहा है. So we'll try कि जितने भी FMG हैं वो ये निकाले, जून जितने भी दे रहे हैं वो easily निकाल दे. बिल्कुल। We'll make videos, and एब्सोल्युटली। if you guys have any questions जो देख रहे हैं, then you can just write it in the comment section, and अगर वो topic बड़ा होगा then we can make a video or we can plan a video or something like that. So thank you so much for थैंक यू joining. वेरी मच।